गुड इवनिंग एवरीवन। ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल की तरफ से एक प्यार भरा नमस्कार आप सबके लिए। नमस्कार हंसा माँ। As a proud partner of MSDC, operating under the aegis of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Beauty and Wellness Sector Skill Council plays a significant role towards achieving our Honorable Prime Minister's vision by developing skilled manpower in India's highly unorganized and fragmented beauty and wellness sector. आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं इतने बड़े बड़े दिग्गज पैनलिस्ट के साथ योगा के लिए बात करने और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को वेलकम करने के लिए। जब हम योगा का नाम लेते हैं, when we say the word yoga, हम सबके दिमाग में सबसे पहले आता है that it means something in which you will have to twist your body and get into some very impossible posture. But let me tell all of you, all our attendees here, yoga doesn't mean impossible postures. Yoga means to be in perfect tune with your own self, your own body, mind, and inner nature, so that everything is in an absolute flow. When you're fine-tuned yourself to such a point where everything functions and flows beautifully within you, that is when things flow out of you. And that's the beauty of life. We may have noticed that when we are happy, everything seems doable and we have that endless energy to work on that particular day. Every aspect of our life, the way we walk, the way we talk, the way we breathe, the way we interact, should become a process of yoga. Nothing is excluded from yoga. If we cultivate our body and mind, emotions and energy to certain level of maturity, a certain quality arises within us. इसको योगा कहते हैं। योगा ऐसा कुछ नहीं है जो हम बाहर से करते हैं। Yoga becomes us. It's not an act, it becomes a quality and a way of life. The only way to experience true well-being is to turn inside. This is what yoga is. We should not let yoga become an outward factor, but it has to be an inward factor. ये introduction yoga का देते हुए मैं बहुत जो बोला है वो बहुत छोटा सा introduction दिया है. Major introduction I'll have my panelists जिन जो दिग्गज हैं योगा में उन सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके देंगे। हमारे सबसे पहले पैनलिस्ट डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, जो भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, बीजेपी के सदस्य हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के कैबिनेट में कौशल विकास और उद्यमिता के कैबिनेट मंत्री हैं। 23 मई 2019 से उन्होंने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का पद संभाला है और हम सब उनकी छत्र छाया में काम करते हैं और स्किलिंग को उन्होंने एक नई डायमेंशन और विजन दी है। हमारे दूसरे पैनलिस्ट श्री रविशंकर जी, गुरुदेव श्री रविशंकर जी, आदरणीय गुरुदेव जी is a globally respected spiritual and humanitarian leader. He has spearheaded an unprecedented worldwide movement for a stress-free, violence-free society. Through an amalgamation of programs and teachings, a network of organizations, including the Art of Living and the International Association of Human Values, he has a rapidly presence across 156 countries. Shri's teachings has reached an estimated 4,500 million people. Shri ji, a big welcome on this stage. Hansa Ma, जिनको हम प्यार से हंसा माँ कहते हैं, she's a doctorate and she's the director of the Yoga Institute since 1997. She's the founder of Yoga Institute, the oldest yoga institute of India. Hansa Ma was the country's first and the only lady yoga guru who has been invited by Government of India, Ministry of Ayush to grace the event at Rajpath on 21st June 2015 को, जब पहली बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का शुरुआत किया था। She was also among the one of the 4 yoga gurus जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले ही साल प्रधानमंत्री अवार्ड से has been given to her. Hansa ji is a well-known and brilliant speaker among the international yoga gurus, and she has a sight on popularizing yoga amongst Indians. सादर बड़ा प्रणाम आप सबको, and let me once again welcome हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, गुरुदेव श्री रविशंकर जी, and
our beloved Hansama. Welcome. Can I have हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आप 2 शब्द बताएंगे so that we have a quick round of introduction which I've given and we start on with the session. First of all, thank you so much. आप सबने अपना इतना important time आज की डेट में निकाला कि हम सब लोग जो हमारे attendees हैं उनको योगा का महत्व बता सके. डॉक्टर पांडे. आज योगा दिवस जो अंतरराष्ट्रीय की दिन पूर्व संध्या पर आप मोनिका जी ये ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्रेटरी काउंसिल जो हमारे विभाग से भी विशेष रूप से जुड़ी है उसके द्वारा आयोजित इस वेबिनार के मौके पर सर्वप्रथम परम आदरणीय श्री जी को बहुत विशेष प्रणाम निवेदन कर रहा हूँ और हंसा जी को भी मैं हृदय से प्रणाम कर रहा हूँ, सम्मान कर रहा हूँ। और इस चर्चा में जैसा मुझे बताया गया हम सबको श्री जी का आशीर्वचन प्रबोधन सुनने को मिलेगा। तो सब इस वेबिनार में अपनी तरफ से कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय की तरफ से स्वागत करता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से उनके प्रति सम्मान व्यक्त करता हूँ और इसमें सभी हंसा जी को भी बहुत बहुत स्वागत है और सभी पार्टिसिपेंट को मेरे तरफ से आदर है। मैं चाहूंगा कि मोनिका जी आप इस चर्चा को पूज्य श्री जी के आशीर्वचनों से जैसा मुझे बताया गया है शुरुआत करने की पहल करें, मैं यही निवेदन करूंगा और फिर हम जैसा आप सबका होगा श्री सीधा सेवा तो सब मैं भी आप सबके लिए। थैंक यू सो मच माननीय मंत्री जी। गुरुदेव जी, we all are impatiently waiting to hear from you. सबको नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, हमारी प्रिय बहन हंसा जी और सभी श्रोतागण, ये बहुत एक क्रांतिकार विचार हुआ है। योग सिर्फ आध्यात्म ही नहीं है मगर उद्योग से भी जुड़ा हुआ है। इस बात को हमारे कौशल विकास केंद्र ने साबित किया है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं योगः कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता लानी हो तो योग की आवश्यकता है। योग सिर्फ एक सन्यासी साधु महात्माओं की दिनचर्या नहीं है। भगवान कृष्ण ने योग को एक योद्धा को सिखाया, एक राजनेता को सिखाया। अर्जुन देश के नेता बन रहे थे, तब एक योद्धा थे। युद्ध रंग में उन्होंने अर्जुन को सिखाया, जबकि वो सब छोड़ छाड़ के भागने वाले थे। अर्जुन तो सब छोड़ के भागने वाला ही था, तो भगवान कृष्ण ने उनको योग तब सिखाया, बोला नहीं, समाज में तुम्हें बहुत काम करनी है, समाज की जिम्मेदारी तेरे कंधे पर है, इसलिए तुम्हें योग करना बहुत आवश्यक है। फिर युद्ध में भी उन्होंने कहा युद्धाय विगतस् ज्वरा, ज्वर विहीन होकर के तुम युद्ध करो। मानी योद्धा के लिए बहुत आवश्यक है उसका मन ठीक होनी चाहिए, एकाग्र चित्त से होनी चाहिए। आज इस कोरोना वायरस से भारत क्यों पूरी दुनिया लड़ रही है, इस युद्ध के घड़ी में हमें योग की आवश्यकता सबसे अधिक है। क्यों? मानसिक बीमारी से बहुत लोग जूझ रहे हैं, न देश में बल्कि पूरे विश्व में। सबसे बड़ी जो चुनौती है मानव जाति के सामने वह है मानसिक अस्वस्थता। ये मानसिक अस्वस्थता को हमें दूर करना हो, उसको रोकना हो, तो हमें योग के शरण में आना ही पड़ेगा। योग, प्राणायाम, ध्यान, ये सब साथ में करनी पड़ेगा। पहले जैसे हमारी बहन जी ने बताया
योग सिर्फ आसन नहीं है, वो जीवन जीने की शैली है, जहाँ जीवन में आपको अंदर से मजबूती मिले, बाहर से आप सबसे व्यवहार में कुशल बने और स्नेहपूर्ण मैत्रीपूर्ण व्यवहार आप करते रहे, तो आप कह सकते हो मैं भी योग कर रहा हूं। तो योग से रोग निरोध इतना ही नहीं है, व्यवहार में मधुरता भी आती है। योग करने वाले कभी किसी के साथ झगड़े झंझट अत्याचार करने कभी नहीं जाते। अच्छा, अब रही भारत की जो कौशल विकास मंत्रालय, ये जो विशेष रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसकी स्थापना करी, अब मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और एक बार हम प्रधानमंत्री जी के साथ एक विवेकानंद फाउंडेशन का, इंडिया फाउंडेशन का एक कार्यक्रम में बैठे थे, मंच पे हम भी थे। तब उस वक्त हमने प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया था, ये 2015 में, कि भारत का स्किल्स जो है ना, डेवलपमेंट बहुत आवश्यक है। जबकि छोटा सा देश है कोरिया, वहां पर 96%, 96% लोग स्किल्ड है, पर भारत में सिर्फ 3 या 4% है। तो इसको बहुत जरूरी हमें लेना है। तो उसी महीने प्रधानमंत्री जी ने इस निर्णय किया। अब योग को भी उसके अंदर उन्होंने शामिल किया, ये बहुत उत्तम बात है। योग को अक्सर लोग समझते हैं ये सिर्फ आरोग्य हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, आयुष मिनिस्ट्री के साथ तो लगी है, मगर स्किल्स के साथ उसका क्या संबंध है, ऐसे लोग प्रश्न पूछते हैं। मगर मैंने इसीलिए शुरुआत ही से किया, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता लाने वाली जो तत्व है वो योग है। और गांव-गांव में अपना स्किल डेवलपमेंट के जरिए, कौशल विकास केंद्र के जरिए लोग योग भी सीख रहे हैं। जैसे हमने अभी देखा तो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के असम तक और यहाँ केरला तक पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट की जोर शोर से काम चल रही है, और भी तेजी से चलेगी। अभी तो ये लॉकडाउन के वजह से तब सब थोड़ा शांत हो गया, ठप हो गया, मगर हमें बहुत आवश्यक है देश के युवाओं के जो ऊर्जा है उसको एक दिशा निर्देश देना है। और जो पढ़ाई हो रही है स्कूलों में, कॉलेजों में, वो एम्प्लॉयबल नहीं है, उससे उद्योग नहीं मिलता है। कितने सारे युवा, पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं आज, मगर ये अपना स्किल डेवलपमेंट के साथ जुड़ जाते हैं, अपना कौशल विकास करने में लग जाते हैं। उद्योग के लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी हमारे देश में है, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। और इसी दिशा पे यदि हम चलते हैं, योग और उद्योग को साथ लेके, निश्चित ही भारत बड़ा मजबूत देश बन के आगे निकलेगा। आज भी हम मजबूत हैं, मगर हमें और भी गंतव्य काफी दूर तक है। वो गंतव्य तक हमें पहुंचना है तो सबको एक कौशल विकास आवश्यक है, साथ ही साथ योग साधना बहुत आवश्यक है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, योग साधना सिर्फ आसन ही ना समझ बैठे, आसन से शुरू होता है, फिर जीवन में यम नियम प्राणायाम ये सब भी जुड़ने लगता है, फिर ध्यान और आत्म कल्याण, समाज कल्याण, विश्व कल्याण के ओर हमारे विचार को, हमारी भावनाओं को ले चलता है। इसलिए ऐसे योग की
शिक्षा में अब बड़े बड़े हमारे देश के संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशन है। अब हंसा जी जैसे कितना काम कर रही है, हमेशा प्रसन्न रहती है, मैंने देखा आपको प्रसन्न रहती है और लगातार काम करती है। क्यों? इनके भीतर योग शक्ति है। ऐसे योग शक्ति हर महिला, हर पुरुष अपने जीवन में आत्मसात कर ले, हम हर तरह की चुनौती को सामना करने में समर्थ हो जाएंगे। तो मैं महेंद्र नाथ पांडे जी से पहले भी मुलाकात हुई थी आपसे एक बार, आपने भी बहुत दिलचस्पी रखते हैं, आप और इसको आगे बढ़ाइए, आपका काम यशस्वी हो, आपका ये सफलता मिले, ये जो मिशन आप देश के युवाओं को स्किल्ड करने के लिए चले हैं, इससे मैं आपको फिर से बधाई देता हूं। आप सबको 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सबको सब प्रेम बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं, आशीर्वाद और शुभकामनाएं। ओम शांति। गुरुदेव जी, थैंक यू सो मच। आपने हमें योग का इतना अच्छा मतलब और उसको आप अर्जुन जी और कृष्ण जी के साथ जोड़ के जो समझाया, आई थिंक किसी के भी दिमाग में कोई डाउट ये नहीं रहेगा कि योग मीन्स अ डिफिकल्ट पोस्चर अब जो हम लोग सोचते हैं। जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, हमारे प्रधानमंत्री जी के स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास उनके हृदय के बहुत पास है। इसीलिए हमारे माननीय मंत्री जी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे 2019 से जिन्होंने इस डिपार्टमेंट का हेड करना शुरू किया है, आप देखिए इतनी स्किल डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लेके, और हम सबको भी उनकी छत्र छाया में इतना अच्छा काम करने का मौका मिल रहा है, और वो खुद हर चीज में दिलचस्पी लेते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी उस जो उनकी विजन है उसको ले जाके ग्राउंड लेवल पे उसको रियलिटी में चेंज करें। तो उसके लिए आपका हाथ जोड़ के नमन के साथ थैंक यू सो मच। एंड विद दैट आई विल इनवाइट हंसा माँ, जिनको हम प्यार से अपनी माँ बोलते हैं, डॉक्टर, सॉरी मैं आपको डॉक्टर हंसा जी ना बोल के हंसा माँ बोलना चाहूंगी, बिकॉज माँ के शब्द में जो अपनापन है वो हंसा जी में नहीं है। So let me just quickly welcome you, Hansa Ma, and a small word from you, and then we start the discussion. Yes. Well, I always feel that every human, in any case, is quite capable. हमारे अंदर सब कुछ है, शरीर इतना मिरेकल शरीर है हमारा, क्या क्या कर सकता है, और मन तो उससे भी काफी ज्यादा है। हमारे अंदर जो शक्ति है, ऊर्जा है, वो बहुत है। किसी भी इंसान को अपने आप को नीचा नहीं गिराना है। वो भगवत गीता फिर मुझे याद आ रही है, उद्धरेत आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपने आप को नीचे मत गिराओ, ऊपर उठाओ। ये जो हो रहा है आजकल के युवा में, कि टेंशन आ गया, सुसाइड कर लिया, कितना गलत हो रहा है। क्यों हम एडजस्ट नहीं हो पाते? अगर किसी ने आपको प्यार किया तो कोई आपको नफरत करने वाला भी मिलेगा। अगर आप सक्सेस है, आपको मिला है, तो फेलियर भी मिलेगा। अभी ये सब चीजें तो आनी जानी है। इससे खुद को डिस्टर्ब नहीं करना है, खुद को ऊपर उठाना है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि योग ही है जो हमें संभाले रखेगा। इट्स इन टुडेज वर्ल्ड, आज की दुनिया में इट इज ओनली योग विच इज अ सेवियर। और वो हमें समझना पड़ेगा कि योग को किस तरह हम जन मानस तक पहुंचाएं। अभी तो 198 कंट्री ही योग कर रहे हैं, मगर अब तो हर व्यक्ति, प्राणी मात्र को योग सीख लेना चाहिए, और जिससे वो अपने आप को सही स्थिति में रख पाए, बैलेंस स्थिति में रख पाए, समत्व स्थिति में रख पाए। क्योंकि अप एंड डाउन तो लाइफ है, जीवन है, वहां मृत्यु है, जहाँ दर्द है, हैप्पीनेस है, सब साथ में ही है। तो अपने आप को सही स्थिति में रखना योग बताता है। और योग इसीलिए कहता है स्वावलंबी बनो, बिकम सेल्फ रिलायंट, स्टार्ट ऑब्जर्विंग योरसेल्फ। अपने आप को समझो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो मिनिस्ट्री की तरफ से नरेंद्र जी जो यहाँ है, वो बहुत अच्छा लगा कि आप अगर इतना साथ देंगे तो हमारे देश में हर स्टेट की अपनी एक स्पेशलिटी है, उसमें कितना स्किल है, बहुत ही है। इसे गांधी जी ने भी तब कहा था कि हर गांव अगर सेल्फ रिलायंट बन जाए तो अपना देश ऊपर आएगा।
और अब यही करना है कि हर गांव में उनको सहारा देना है, गांव के लोगों को उनके पास योग को ले जाना है, उनको बताना है कि आप ये करो और आप ये स्किल से आप काफी पैसा कमा सकते हो। योग से तो कमाते ही है, लेकिन काफी पैसा कमा लोगे और उन आपके जीवन का आधार भी बन जाएगा आपका स्किल। जब ये उन्हें समझ में आएगी तो बहुत ही सही रहेगा। और जब तक गवर्नमेंट नहीं जुड़ती बड़े बड़े काम नहीं हो सकते। और इसीलिए डॉक्टर महेंद्र जी जब हमारे साथ हैं तो आप बहुत ही ग्लैड हूँ, बहुत ही अच्छा है। हम सब मिलकर देखिए जनमानस तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। और बस अब गुरु जी ने इतनी सब बात की तो और ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला, हमारे माननीय मंत्री जी के छत्रछाया के अंदर कुशल भारत कौशल भारत, ये हम मुहिम के अंदर काम कर रहे हैं। जो आपने बोला बिल्कुल उसके साथ ही हम चल रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की विजन के अंडर हम सब मिलके सबको कौशलता से कुशलता तक लेके जा रहे हैं। गुरुदेव जी, आपसे एक छोटा सा सवाल हम शुरू करना चाहेंगे कि हमारी रोज की जिंदगी में हमारे पास बहुत प्रेशर्स होते हैं, काम का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, फाइनेंशियल प्रेशर, ईएमआई जानी है मंथ की उसका प्रेशर, और अब जब लॉकडाउन में सब घर पे बैठे हैं ईएमआई का बोझ बढ़ता जा रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोई अगर चाहे मेडिटेशन के थ्रू अपना वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना, तो वो सब आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज आपने जो मेडिटेशन के थ्रू एकाग्रता लाने का कार्य शुरू किया है उसमें मतलब भारत तो एक स्थान पे है, ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल रिकॉग्नाइज यू फॉर दैट। सो हमारे दर्शक उस चीज के लिए आपसे जरूर जानना चाहेंगे गुरुदेव जी। जब तनाव बढ़ता है उस वक्त हमको एक चीज याद करनी पड़ती है, अपना आत्मविश्वास। हम अकेले नहीं, हम कर सकते हैं। जब हमको लगता मैं नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत बोझिल है, मेरे से नहीं होता है, ये सोचते हैं तो टूटने लगते हैं और कमजोर होने लगते हैं। जब तरह तरह की प्रेशर आती है, मुसीबतें आती है, उस वक्त आत्मबल की, अंदरूनी मजबूती की जरूरत है। ध्यान और योग हमें ये प्रदान करता है, आत्मबल, आत्मविश्वास। ये दोनों होने से फिर हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, एक बात है। दूसरा है, समाज में अच्छे लोग हैं, समाज में सब गुंडों से बदमाशों से नहीं भरा है, ये बात पर हमें यकीन करना चाहिए। जब हमको ये यकीन हो जाता है, विश्वास हो जाता है समाज में अच्छे लोग हैं और हमारे मदद में लोग आने वाले हैं जब हमको जरूरत है, इस विश्वास से भी आदमी काफी हद तक अपने मन को संभाल लेता है, भय नहीं लगता। यदि हमें समाज पर विश्वास नहीं होता, ये सोचते रहते हैं हर कोई यहाँ चोर है, तो व्यक्ति के भीतर एक व्यक्ति तिलमिला जाता है। तीसरी बात यह है कि ईश्वर पर विश्वास एक शक्ति है जो हमेशा हमको साथ देते हुए आई है, जीवन भर उस शक्ति का हमें सहारा मिला है और आगे भी मिलता रहेगा। इस तरह से प्रभु विश्वास, समाज के अच्छाइयों पर विश्वास और आत्मविश्वास, ये तीन होने से हम किसी भी तरह के समस्या से पार हो सकते हैं और ध्यान इसका एक माध्यम है। गुरुदेव जी, आपके ये गुरु मंत्र की तरह हम इसको करेंगे। माननीय मंत्री जी, आपको जैसे आप कोरोना ने हम सबको दिखाया कि हम जितने भी अलग हो जाएं, हम डेवलप्ड नेशंस हो जाएं, डेवलपिंग नेशंस हो, एशिया हो, यूरोप हो, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हो, पर जब मुश्किल पड़ती है तो हम सबको एक साथ मिलकर काम करने से ही उसमें प्रोग्रेस मिलती है और उस हम काम को, उस कार्य को आगे तक लेके जा सकते हैं। इसी आई थिंक कहीं ना कहीं हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब 2015 में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा शुरू किया था, उन्होंने सारा डिफरेंट कंट्रीज को ग्लोबली एक प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश की थी और वो कोशिश में बहुत सफल भी रहे। आज 21 जून 2020 में आप देखिए, इन स्पाइट ऑफ कोरोना बीइंग देयर, इतना पूरे विश्व में कोरोना हो रहा है, बट योगा को सेलिब्रेट करने सब आगे आ रहे हैं
और उसमें इंडिया में जो हम भारत देश से करते हैं उसको वो फॉलो करते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि योगा सिर्फ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा तक लिमिटेड नहीं रहे और ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज तक लिमिटेड नहीं रहे, उसको हम कैसे आगे लेके जाएं और उसको कैसे अपनाएं? मंत्री जी। इसी के आशीर्वचन से प्रबोधन से शुरुआत हुई है। सामान्य की बहुत प्रेरक बात कही और हमें अच्छी तरह मालूम है, मैं जी को मिला भी हूँ एक दो समारोहों में और खासकर लखनऊ में एक बार जो विशेष सत्संग का अवसर मिला था। तो आज दो प्रसंग बड़े अनुकूल और जिम्मेवारी के मौके के हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 6वां की जो है, योग में जो मन की एकाग्रता का विषय है, उसमें आज विश्व निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उपादेयता आज पहले से ज्यादा बढ़ेगी। मानसिक परेशानियों में जो तनाव है, अपने जीवन के रक्षार्थ लोग जो लंबे समय तक घरों के केंद्रित रह रहे हैं, उसमें भी एक अनेक प्रकार की कुंठा, एक मानसिक तनाव जन्म रहा है। उस समय योग साधना, योग के द्वारा चित्त की एकाग्रता अपने आप में उसका महत्व है। जो आपने प्रश्न किया, आज विश्व को भारत ही समाधान दे सकता है। उसी ऋषि मुनियों की परंपरा से, ऋषि पतंजलि से लेकर आज तक, और स्वयं ऋषि अपने आप में एक विलक्षण व्यक्तित्व के धनी है कि आज आर्ट ऑफ लिविंग का जो महत्व है वो पहले से कहीं ज्यादा गुणात्मक महत्व बढ़ गया है। जो उन्होंने सिखाया है आज उसके और इर्द गिर्द लोग अपने को सुकून महसूस कर रहे हैं। जहाँ तक मैं श्री को निवेदन करना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि कोरिया का संदर्भ आपने दिया। जर्मनी है, कोरिया है, सिंगापुर है। मोदी जी ने आप सबकी, अनेक लोगों की और विशेषकर आपने भी चर्चा की, उनका भी उनके मन में बड़ा प्रभाव रहा माननीय प्रधानमंत्री। और कौशल विकास मंत्रालय के बाद से आज परिस्थितियां बदली है। अब वो 3 और 4% की जगह आज हम 7 और 8% स्किल पर्सन 2015 से जो सफर बढ़ा है तेजी से, हम यहाँ तक पहुंचे। अभी हम उसको और व्यवस्थित करने में लगे हैं। मुनका जी आप तो जानती हैं, आपने कहा भी, मैं इसमें लगातार लोगों को जोड़े रहने की कोशिश करता हूँ। लगभग 1 लाख तक लोग तो आपकी काउंसिल से जुड़ करके इसमें ब्यूटी एंड वेलनेस से जुड़ करके योगा के क्षेत्र में प्रशिक्षित हुए हैं। हमारे लगभग आरपीएल और ट्रेंड लोगों का आंकड़ा 96,196 का तो हमारे पास उपलब्ध है। और जो आज योग शिक्षक के रूप में जगह जगह लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं और उसमें सहायता दे रहे हैं। यहाँ तक कोरोना का जो आपने जो विषय उठाया है, तो आज इसमें अपने आप में कोरोना से बचाव के लिए अग्रिम कदम जो भारत में प्रधानमंत्री जी ने उठाया, उसका फल भी मिला है, मिल भी रहा है। कठिनाइयां बढ़ रही हैं, लेकिन विश्व के परिमाण में, विश्व आबादी का जो घनत्व है, उसमें कहीं न कहीं हम भी बहुत ठीक स्थिति में है। और आगे भी कई महीनों तक ये परिस्थितियां चलेंगी। उसमें आपसे ट्रेंड योग के लोग, जी के योग संस्थान से जुड़े लोग और अन्य योग संस्थानों से जुड़े लोग, खासकर श्री जी से जुड़े लोग, इसमें लोगों को शारीरिक रूप से लेकर मानसिक रूप से भी मन को मजबूत करते रहे और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उसको और प्रबलता से आगे लाए। मैं तो बहुत इसमें, मैं तो एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, जिम्मेवारी के तहत इस काम में मन योग से लगा हूँ कि प्रामाणिकता के संग, साफ सुथरे ढंग से, सही तथ्यों के संग कौशल विकास का काम हो और विश्व के अंदर भारत में कुशल भारत, कौशल भारत अभियान और दुनिया में स्किल वर्कफोर्स भारत की इस प्रबल आबादी को बनाया जाए। तो मोदी जी का सपना है, मैं समझता हूँ श्री जी का और आप सबका भी वही सपना है। वैसे प्रेरणा सदा श्री देते रहते हैं। अब व्याख्या के लिए
खट योग है, अष्टांग योग है, बहुत चीजें मैं तो मोटे शब्दों में जानता हूँ। शरीर की थकान के लिए व्यायाम है, मन की थकान के लिए प्राणायाम है, और आत्मा और जीव की थकान के लिए योग। तो ये जो तीनों, और जो व्यायाम, प्राणायाम और योग, ये मिल करके हम सब आज की देश की युवाओं को, प्रबुद्धों को, प्रौढ़ों को, हर वर्ग को यह आज के अवसर पर आप सबकी शुभेच्छा के साथ, श्री श्री के आशीर्वाद के साथ, हंसा जी की शुभेच्छा के साथ आए, हमारा यही निवेदन है। और श्री श्री हम सबको ऐसे आशीर्वाद प्रेरणा देते रहे, शरीर और मन आत्मा तीनों की थकान दूर कर योग के माध्यम से हम सब इस कठिन हर तरह की जो चुनौती कोविड-19 में खड़ी हुई है उसका सामना करें, और भारत को स्वयं अपने देश के रूप में तो सामना करने में सफल बनाएं, विश्व को भी दिशा दें, और जिसकी आज महती जरूरत है। मेरी तरफ से यही निवेदन है, और आपके प्रश्न के परिप्रेक्ष्य में मेरा यही भाव। मंत्री जी, आपने जो बोला बिल्कुल ठीक बोला। एंड उस बारे में मैं कहना चाहूंगी, हमने नमस्ते तो पूरे विश्व को दे ही दिया है। अब हाथ मिलाना, हक करना, वो सब भूल के भारतीय परंपरा से नमस्ते सब लोग अपनाना शुरू कर दिए हैं। ट्रम्प से लेके सारे जो इंटरनेशनल लीडर्स हैं उन्होंने अपना लिया है। और जैसे आपने सही बताया, इस बात को आगे बढ़ा दीजिए, नमस्ते भी दे रहे हैं। पहले घरों में हाथ पांव धो के घर में आने का संस्कार था, वो भी हम लोगों ने आज देश दुनिया को दिया है। जो योग में सिखाया जाता है कि आप योग करने बैठे तो अपने आप को शुद्ध करके बैठे, हाथ धो के, मुंह धो के बैठे, जैसे बताया जाता है, तो वो भी हमने पूरी दुनिया को सिखा दिया, चाहे कोरोना के माध्यम से सिखाया हो। वो हर चीज का, हर इम्पैक्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव रहता है, तो ये हम पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके चलेंगे। और माननीय मंत्री जी, जैसे आपने बताया, ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल ने 96,196 योगा के फील्ड में ट्रेनिंग्स दी हैं ऑलरेडी, और जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, एंड कर्नाटका नंबर 3 पे है। उसके साथ हम स्कूल्स में भी, सीबीएसई स्कूल्स में और आरएमएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के स्कूल्स में भी योगा का कार्यक्रम करते हैं, जिसमें बच्चों को सिखाया जाता है। हंसा माँ, हमें गुरुदेव जी ने योग मंत्र दिया, गुरु मंत्र दिया, जिसको हम आगे लेके चलेंगे। हमें माननीय मंत्री जी ने सारे विश्व को इकट्ठा करके योग कैसे आगे लेके जाना चाहें वो बताया। आपसे मेरा प्रश्न है कि हम योग को घर में कैसे लाएं? बाहर तो हम ले गए, बट सबसे इंपॉर्टेंट है योग को हम घर में लेके आए। हाउ डू वी ब्रिंग योग टू आवर होम? आपको एक बात बता दूं कि हर इंसान को धर्म के रास्ते पे चलना है। धर्म यानी मेरा कर्तव्य, व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकती हूँ, वो मुझे हमेशा करना है। प्रॉब्लम ये सब है, मगर इसमें मैं क्या करूं, ये मुझे करना आना चाहिए। और ये अगर मैं करने लग जाऊं तो प्रॉब्लम अपने आप ठीक होगा। बड़ी से बड़ी परिस्थितियां हैं जिसमें हम यही कहने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चलो डेथ हुई घर में। अभी देखिए हमारे देश ने भी ये डेथ के बारे में कितनी बड़ी बात कही है कि शरीर से आत्मा निकल गई तो शरीर तो पंच महाभूत में विलीन हो गया, उसको तंबू में रखने की और उसकी जरूरत नहीं, उसको जलाना चाहिए। अब कोरोना की वजह से जलाना शुरू हुआ है, और नहीं तो जगह कहाँ है डेड बॉडी को रखने की। और इन एनी केस ये अपनी संस्कृति है कि हम पंच महाभूत से बने हैं और उसी में वापस विलीन होना है, और वापस आ जाएंगे नया जन्म लेके अपने कर्मों के साथ में। तो ये सारी चीजें हैं, स्वावलंबी बने। अगर दिमाग कमजोर है तो शरीर को ज्यादा काम करना चाहिए, अगर शरीर कमजोर है तो दिमाग को शांत रखकर और अपना कर्तव्य करना चाहिए। ये पॉलिसी बड़ी क्लियर है। तो इसीलिए अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को धर्म के रास्ते पे चलना है, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी है कि इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकूं। सारे जो गवर्नमेंट ने बातें बताई है कि कैसे हाथ धोना, क्या क्या करना, वो फॉलो करना है मुझे जब हर चीज मैं फॉलो करूंगी तो फिर कारवां बढ़ेगा, और इसीलिए जिम्मेदारी मेरे हाथ में है। टेक चार्ज ऑफ योर सेल्फ, अपलिफ्ट योर सेल्फ, और अपने आप को कार्यशील रखो, क्योंकि
कार्य करते करते ही कुछ न कुछ हो सकता है। अपनी परिस्थिति को सही स्थिति में रखना, मन को सही स्थिति में रखना और अपने कार्य में लगे रहना, यही तो मेन मैसेज है। डू योर जॉब विद बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी, बी अ वर्क ओरिएंटेड पर्सन, नॉट अ रिजल्ट ओरिएंटेड पर्सन। काम में मन को लगाओ, रिजल्ट तो खाली रेफरेंस की तरह होता है, देख लो और उसके हिसाब से काम में कुछ बदलाव लाना हो तो लाओ, मगर मुख्य तो काम है, काम पर ध्यान देना है। और यही अगर हर इंसान करने लगे तो हमारे देश की कैसे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। आप देखिए कैसे ये योग के माध्यम से और ये समझदारी जो हम सब कर बता रहे हैं, इस माध्यम से हर व्यक्ति अपना योगदान बराबर देगा, और जब वो करेगा तो पूरे देश का और पूरे विश्व का कल्याण होने ही वाला है। तो अब हमें आगे बढ़ना है और अपने इस लक्ष्य को जन जन तक पहुंचाने के, परिवार तक पहुंचाने का जो लक्ष्य है, उसे हमें ध्यान में रखकर और काम में। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा हुआ। हम योग से कर्म योगी बनेंगे, तो उसी से आगे लेके जाएंगे। माननीय मंत्री जी, आज के टाइम में इनफैक्ट प्री कोरोना ऑल्सो इंटरनेशनली भारत में बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं, रिक्वायरमेंट्स आ रही हैं कि उनको योगा के ट्रेनर्स चाहिए, तो जिससे हमारे स्किल्ड लेबर फोर्स के लिए एक इंटरनेशनल मोबिलिटी का रास्ता बन रहा है। मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में माननीय मंत्री जी अपने तरफ से प्लीज हमारे यंगर जनरेशन जो है, जो ये कोर्सेस कर रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के अंदर जाके, उनके लिए एक मैसेज देना चाहेंगे कि उनको योगा के थ्रू इंटरनेशनल, इंडिया में जॉब्स हैं बहुत हैं, बट इंटरनेशनल मोबिलिटी का भी एक चैनल और एक रास्ता दिखता है। तो माननीय मंत्री जी, हम इसमें आह्वान करेंगे कि आप अपनी काउंसिल के माध्यम से इसमें आगे आए, और आपको जानकारी दूंगा कि हमने इसी नाते आगे 2020 से 25 की PMKVY 3 की एक बड़ी सुनियोजित प्लान की है, और जिसमें अभी जैसे आपने अपनी बातचीत में कहा ना कि कुछ माध्यमिक विद्यालयों में भी हम जो नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं, इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। एक साल उसमें जो कोविड के चलते थोड़ी सी बातें, हर चीज थोड़ा आगे पीछे छोटा बड़ा हो रहा है, तो उसमें हम डुअल सिस्टम भी लगा रहे हैं ट्रेनिंग का, बल्कि पढ़ते सही ही ट्रेनिंग करें, इंडस्ट्री से जुड़ के ट्रेनिंग करें। आप भी इसमें आगे आए, आपकी काउंसिल भी आगे आए, और हम लैंग्वेज के रूप में भी लोगों को थोड़ा सपोर्ट दिया जाए इंटरनेशनल लेवल में जाने के लिए। एक क्राइसिस निश्चित तौर से कुछ महीनों के बाद अंतर्राष्ट्रीय आवागमन थोड़ा सीमित ही होगा ऐसा लगता है, थोड़ा समय धीरे धीरे संभलने के बाद फिर तेज से होगा, लेकिन जरूरत भारत से जिन चीजों की है उसमें स्वयं प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो कंसेप्ट दिया है, आत्मनिर्भर भारत से भारत के अंदर के साथ बाहर जो चीज जा सकती है, उसमें जो हमारी जाने वाली चीजें हैं, चाय चीनी चावल के साथ साथ और बहुत सी चीजें, लेकिन उसमें हमारा जो वैशिष्ट जीवन शैली का योग जा सकता है, उसके लिए हमारा विभाग पूरी तैयारी से है। आप सब हमें इसमें कोऑपरेट करें। डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही युवाओं को मेरा मैसेज है, कोई भी युवा इसमें आएगा और कौशल्य के साथ अपना योग में वैशिष्ट हासिल करेगा, वो देश और देश के बाहर जो प्रोत्साहन है डिपार्टमेंट। मान्य जी, आपकी विजन के हिसाब से NSDC और सारी SSCs आपकी विजन के हिसाब से आगे चलती हैं। हमें सिर्फ आप अपनी विजन दिखाते रहिए और ग्राउंड लेवल पे उसको एग्जीक्यूट करना हम सबका काम है। मंत्री जी, मैं आपसे एक छोटा सा और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, जो वो हमारे बहुत से दर्शक जानना चाह रहे हैं कि आप अपने दिनचर्या में आप इतना एक्टिव रहते हैं। आप जब इनफैक्ट लॉकडाउन भी था, आप अपने मंत्रालय में आ रहे थे, आप कैसे अपने आप को कोरोना से सेफगार्ड कर रहे हैं? बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि मंत्री जी लॉकडाउन के समय पे भी ऑफिस में ही रहे हैं, एंड हम उनसे सीखना चाहेंगे कि अपनी इम्यूनिटी कैसे उन्होंने बना के रखी है और हम क्या कर सकते हैं। और इसके बाद में आपके पास क्वेश्चन का लेके। हाँ जी मंत्री जी। लॉकडाउन पीरियड में भी मैं मंत्रालय आता रहा हूँ। ये अलग बात है कि श्रम शक्ति भवन में मेरे कौशल वाले
कल को छोड़ के लगभग सभी में कोरोना पॉजिटिव की संख्या कमोबेश निकल गई, लेबर में बहुत ज्यादा निकल गई। तब लोगों की सलाह पर इधर कुछ दिनों से घर से ही संचालन हो रहा है, क्योंकि बिल्डिंग 3 बार सील हो गई। लेकिन हम सब वही है, दिनचर्या, योग, साथ में प्राणायाम और मोबाइल से संवाद और सारे सिस्टम बनाए हुए हैं और डीसी के द्वारा काम कर रहे हैं। साथ में जो काढ़ा देने का काम भी साथ साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों से बातचीत करके मन को लगाए हुए हैं कि अब जब से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि लंबे समय तक, माननीय मोदी जी ने कहा कोरोना के संग उसी के संग अपनी शैली बना करके कुछ दिन चलना हो। तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे मुख्य रूप से प्रेरक हैं। इस वाक्य को ध्यान में रख के हम जैसे सभी मंत्रीगण लगे हुए कि कोरोना को, और आपको धीरे धीरे से जानकारियां मिल भी रही होंगी कि नीचे सुदूर गांव तक भी हम लोग किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। कहीं मास्क भिजवा रहे हैं, कहीं सैनिटाइजर भिजवा रहे हैं, कहीं लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए काढ़ा, च्यवनप्राश, तो संवाद और बातचीत करके लोगों का, तो मैं सबसे बड़ी बात है कि अपने को इंगेज रखने की जरूरत है। जहां एकदम खाली आप अपने को रख देंगे, एकांतिक अवस्था में रहेंगे, तो आपको कठिनाई, फिर बहुत सोचेंगे आगे पीछे, चारों तरफ आपको शून्य नजर आएगा, आप परेशान होंगे। और आप अपने को इन्वॉल्व रखेंगे तो धीरे धीरे ये भी एक कठिन काल भी सब विधाता है आशीर्वाद देकर दूर करेगा। तो बस अपना कर्म करते रहे और मनोयोग से सबसे संवाद बना के। बिल्कुल माननीय मंत्री जी, और काढ़ा आज की डेट में अमृत बन गया है हम सबके लिए। सुबह शाम 2 बार काढ़ा पीना बहुत जरूरी हो गया, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हंसामा, जहां से हमारे माननीय मंत्री जी ने छोड़ा कि हमें अपने आप को इन्वॉल्व रखना है, उस चीज के लिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गुरु मंत्र एक दीजिए कि हम अबंडेंटली हैप्पी एंड पीसफुल लाइफ जी सके सब दर्शकों के लिए। बिकॉज जब तक आप अंदर से खुश नहीं है, आप पीसफुल नहीं है अपनी लाइफ में, सब कुछ होते हुए भी। तो उसका गुरु मंत्र क्या रहेगा? बस पूर्ण विश्वास अपने अंदर और अपनी कैपेसिटी पे, हमारे अंदर जो शक्ति है, ताकत है, उस पे, और फिर पूर्ण विश्वास ईश्वर पे, क्योंकि वो श्रद्धा बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है वो आप और मैं नहीं कर रहे हैं, कुछ और शक्तियां हैं। और हम हर परिस्थिति में क्या सीख सकते हैं वो सीखें। कोई भी परिस्थिति को नीचे मत गिराए अपने आप को, क्योंकि हर परिस्थिति हमें और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ही है। इस कोरोना से इतने लोग स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, आपको अंदाज नहीं है। बहुत सारे लोग जो अब अपने आप को संभालने लगे हैं, बीमारियां, दूसरी बीमारियां बहुत कम हो गई है, अपना ध्यान देने लग गए अब, क्योंकि डर है कि अब हॉस्पिटल में जाना गलत है, तो अपना ध्यान दे रहे हैं। और इसी तरह देते रहें, अपने आप को इतना बिजी रखे, खुद का काम खत्म हो जाए तो दूसरों के लिए काम करें। और पूरा विश्व आपका परिवार है। जब ये करेंगे तब फिर देखो किस तरह आप आगे बढ़ोगे, कोई चीज आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो अपने आप पर विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो और बस आगे बढ़ो, काम में बिजी रखो। बहुत सही कहा मंत्री जी ने, और मैं तो बार बार कहती हूँ कि जरा भी आप फ्री होगे ना तो ये दिमाग उल्टा चलता है, गलत विचार लाता है। काम में बिजी रखो और कुछ न कुछ करते रहो, खुद के लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए लगे रहो। अभी ये बंद था, मगर योग इंस्टीट्यूट ने तो एक्टिविटी शुरू कर दी, ऑनलाइन पे ट्रेनिंग शुरू कर दी, ऑनलाइन पे सिखाना शुरू कर दिया। हम लोग एक भी दिन रुके नहीं और करते ही चले गए। और कितने ही हमारे अभी लगभग 3 लाख से ज्यादा टीचर्स तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में उसे उतारा है और वो अपने जीवन में उतार कर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, लगे रहो और आप देखोगे कि सब चीज सुंदर ही होगी। कोरोना से हम और स्ट्रॉन्ग बनेंगे, सक्षम बनेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए माँ, हमने जो अपना इस बार का थीम रखा है, से यस टू योग एंड नो टू रोग, और 360 डिग्रीज द वेलनेस अप्रोच। जब तक हम चारों तरफ से अपने आप को पॉजिटिव नहीं करेंगे, नहीं होगा। माननीय मंत्री जी, मैं आपसे क्लोजिंग रिमार्क्स एंड मैसेज ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अपने सारे व्यूअर्स, सारे भारतीय और हमारे साथ बहुत इंटरनेशनल दर्शक भी जुड़े हुए हैं,
वो आपकी तरफ से सुनना चाहते हैं कि आपका फाइनल मैसेज उन सब के लिए क्या है, वो कैसे करें और कैसे हम कौशल भारत को कुशल भारत बनाने में ये सब हमारे सहयोगी बने। शुरू में ही योग कर्म कौशलम श्री ने कहा, ये उसका मूल भाव है कौशल प्रदान करने। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो लोग जुड़े हैं तो भारत की इस पवित्र देवभूमि से यही निवेदन है, जहां भी हो भारत के योग के वैशिष्ट के बारे में लोगों को अवगत कराए। और भारतीय अगर ट्रेंड है, अनट्रेंड है, किसी गुरु से सीखा है तो भी, और कुछ भी नहीं सीखा तो भी कुछ भारतीय को योग आता है। तो जो जिसकी सामर्थ्य है उससे अपने योग को निखारे और दुनिया के लोगों को इस परिस्थिति में मन की और शरीर की और चित्त और हृदय सबकी एकाग्रता के लिए प्रेरित करे। यही इस समय दुनिया की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि इस समय लोगों के मन में अपने जीवन, परिवार के जीवन, अपने व्यापार कारोबार के बारे में एक बड़ी अनिश्चितता सी बात घर कर रही है। तो उस अनिश्चितता को दूर करने में संपूर्ण योगदान जो भारत की चिंतन और आध्यात्मिक जो विशेषता है और उसमें प्रत्यक्ष जो योग की भूमिका है, उसको जितनी जिसकी जानकारी कम हो तो किसी न किसी से संवाद करके उसको बढ़ाए। यही मेरा निवेदन, यही मेरा संदेश कहें कि वो संदेश देने की स्थिति में नहीं हूँ, मैं तो एक वर्कर हूँ, लेकिन यही मेरा निवेदन है कि इस रूप में लोग अपने को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन संकल्प लें और इस संकल्प के साथ कोरोना से लड़ने की सारी सजगताओं का प्रबोधन भी करते हैं, क्योंकि सजगताएं ही कोरोना को हराएंगी और फिर एक दिन तेजी से दुनिया अपने सही अच्छे रूप में आएगी। हो सकता है जैसा मोदी जी का मंत्र है, इस चुनौती को अवसर में बदलना है। हो सकता है भारतीयों को दुनिया के सामने बेहतर अवसर भी मिले, उसके लायक अपने को आगे जाना पड़ेगा। हमारा यही भारतवासियों में, और भारतवासी जो देश के बाहर की जगह है उनसे जो जुड़े अन्य देशों के लोग को यही संदेश, यही लोग। माननीय मंत्री जी, जो आपने बोला कि अंदर की ऊर्जा इतनी पॉजिटिव करें, इतनी एनर्जाइज करें कि हम सबको वही ऊर्जा आसपास और विश्व भर में फैला सकें। सो भारतीय होने का ये सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, चाहे वो दवाइयां यहाँ से हमें फॉरेन नेशनल्स में भेजनी थी जब उनके पास दवाइयों का स्टॉक नहीं था, किसी भी चीज में माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने विश्व के बारे में ही सबसे पहले सोचा। ये नहीं सोचा कि पहले मैंने क्या करना है, विश्व अगर है, सब बाहर ठीक है तो हम अंदर भी ठीक रहेंगे। सो आपको इसी से थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और व्यूअर्स को अपनी तरफ से इतनी अच्छी हमारे कौशल कार्यालय में जो काम हो रहा है उस बारे में बताने के लिए, और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का महत्व बताने के लिए, और उसको हम कैसे अपना एक लक्ष्य बना के आगे चल सकते हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत सबकी तरफ से आभार प्रकट करूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस माननीय मंत्री। अच्छा आयोजन के लिए शुभकामना। हंसा जी को हंसा माँ, मेरे को आप 2 मिनट के लिए और चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए हंसा माँ जो आ रहा है व्यूअर्स का, कि आज जब 3 महीने से लॉकडाउन रहा है, हमें कभी भी 24/7 अपने साथ रहने की ना जरूरत पड़ी ना आदत हुई। आदत है। आज जब हम 24/7 अपने साथ रह रहे हैं, हम सब बहुत एजी हो चुके हैं, और वो एजीनेस हम अपनी फैमिली, अपने को इनहेबिटेंट्स के साथ निकाल रहे हैं, जिससे स्ट्रेस हो रहा है लाइफ में। एक तरफ हम कह रहे हैं कि ये टाइम ऐसा मिला है कि हम अपनी फैमिली के साथ अच्छे से स्पेंड कर सकते हैं, बट दूसरी तरफ वो एजीनेस इस चीज को इरोड करती जा रही है। सो उसको कैसे कंट्रोल करें कि हम अपना मेंटल बैलेंस भी मेंटेन रखें, इमोशनल बैलेंस मेंटेन रखें, एंड अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को एक अलग तरीके से सुलझा सके। देखिए, हमें डिसिप्लिन की जरूरत है। योग एक अनुशासन का विषय है। अब परिवार में जब साथ में है तो एक दूसरे की मिस्टेक निकालना, एक दूसरे के बारे में
गलत बोलना, ये सब बंद कर दो। परिवार में हर एक के गुण ढूंढना शुरू करो जो हमने ढूंढे नहीं, और गुण ढूंढना शुरू करो और सब मिलकर परिवार के अंदर एक पॉजिटिव वातावरण लाओ। खुद के साथ सब मिलके खेल रहे हैं, सब मिलके खाना बना रहे हैं, सब मिलके सब कर रहे हैं, वो मिलके काम करने की आदत और कोई न कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत वो आनी चाहिए। मगर किसी ने अगर गलती की तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है, ये गलती है, अगर एक से नहीं हुआ तो आप कर डालो। तो ये एक मन की स्थिति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे शादी करते हैं तो नक्की करते हैं ना कि भाई हम तब दोनों साथ में रहेंगे, कसम खाते हैं ना, वो 7 कसम देते हुए। हाँ, तो ऐसे ही कसम हमें खानी पड़ेगी अभी साथ में है तो, कि हम एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाएंगे, बुरा नहीं कहेंगे, दोष नहीं निकालेंगे, हम गुण ही देखेंगे। एक डिसिप्लिन। और दूसरा, हर व्यक्ति को अपनी अपनी स्वतंत्रता देते हैं। लिव एंड लेट लिव पॉलिसी, जो महावीर हमेशा कहते थे, जियो और जीने दो। तो आप कुछ पढ़ाई करो, कुछ सीखो। अब हम लोग तो ऑनलाइन में काफी कुछ ट्रेनिंग दे रहे हैं, आ जाओ ऑनलाइन पे, कोई ना कोई कोर्सेज शुरू करो, लेना शुरू करो, कि जिससे आप सीखोगे, योग सीखोगे तो योग जीवन में आएगा और आपको उससे बहुत फायदा होगा। इतना लोग हमें कहते हैं कि इतना फायदा हो गया, 21 दिन कोर्स किया, 1 महीने का किया, 3 महीने का किया। ये सब कोर्सेज शुरू करो सीखना, तो इससे मन तो केंद्रित रहेगा, ये आपकी ऊर्जा तो बढ़ेगी, आपकी सक्षमता बढ़ेगी और आप ये समय को अच्छी तरह बिता पाएंगे। परिवार एक शांति का स्थान है, परिवार में अशांति लानी ही नहीं है, ये नक्की करना पड़ेगा। किसी से भी दुखी नहीं होना है, किसी से डिस्टर्ब नहीं होना, ये मन में निश्चय करना पड़ेगा। और जब वो करेंगे तो आप रिएक्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे तो प्यार से बोलेंगे। अगर गुस्सा आया तो उसको हटाने के लिए थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, थोड़ा प्राणायाम कर लिया, थोड़ा आसन कर लिया, मगर गुस्सा किसी को दिखाया नहीं। अपनी कमजोरियां मत बढ़ाओ। गुस्से में, अगर मुझे गुस्सा आया तो ये मेरा प्रॉब्लम है, किसी की वजह से गुस्सा आया, वो कहना मैंने मैनेज नहीं किया वो परिस्थिति को, इसलिए मुझे गुस्सा आया। तो पुट योरसेल्फ इनटू अ सिचुएशन और देखो कि मैं अपने उससे कैसे बाहर आ सकूं। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि अपनी जिम्मेदारी हाथ में लो, अपने को सही स्थिति में रखो और कुछ न कुछ सीखते रहो और योगमय जीवन लाओ, तो जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। एब्सोल्युटली हंसा माँ, वो कहते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी में अगर आपका वीक माइंड हो, उस बॉडी को और उस माइंड को कॉम्बिनेशन में लाके इक्वेशन बनाना बहुत डिफिकल्ट है। वर्सेस अगर एक वीक बॉडी हो बट माइंड स्ट्रॉन्ग हो, इक्वेशन इज ऑलवेज ऑन प्लस प्लस प्लस, वो कभी नेगेटिव में नहीं आती है। और अगर स्ट्रॉन्ग बॉडी और स्ट्रॉन्ग माइंड हो तो उसका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। बिल्कुल। और वो करने के लिए आई वुड से स्ट्रॉन्ग बॉडी और स्ट्रॉन्ग माइंड सिर्फ योग से पा सकते हैं, बिकॉज योग नॉट ओनली वर्क्स ऑन योर फिजिकल वेलबींग, बट जैसे आपने बताया, गुरुदेव जी ने बताया और माननीय मंत्री जी ने बताया कि योग एक ऐसा है जो हमारी वो सारी कहते हैं ना, सारी केंद्रियों पे असर करता है। फिजिकल, इमोशनल वेलबींग पे काम करता है, मेंटल वेलबींग पे काम करता है और हमें अपनी ही पॉजिटिविटी को आगे लेके जाने देता है। सो अगर हमारे, जैसे आप बता रही हैं कि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे। और ये जब डिफिकल्ट टाइम चल रहा है कोरोना के टाइम में, पॉजिटिविटी स्प्रेड करने से ही पॉजिटिविटी आएगी। व्हाट यू गिव यू गेट, यू गिव पॉजिटिविटी यू विल गेट पॉजिटिविटी। That's it. What you feel, you attract. तो अगर आप दुखी हो तो दुख अट्रैक्ट करोगे, टेंशन हो तो टेंशन अट्रैक्ट करोगे, जॉय लाओगे तो जॉय अट्रैक्ट करोगे। और बहुत अच्छा है कि आप ये ध्यान रखो कि जैसा डालोगे वही आएगा। तो अच्छी चीज डालो तो अच्छा आएगा, पॉजिटिविटी डालो। तो यही बात है, हम सबको याद रखनी है और जीवन जीना है। बिल्कुल हंसामा, whatever you give to the universe, universe manifest it and give it back to you. Exactly. That is what happened. हंसामा, I can't thank you. मतलब आपसे जब भी बात करें टाइम कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता. I would not have wanted you to let go of and so all the viewers on this show, but I know आपकी 6 बजे की appointment है. So Monica, you have done a wonderful job and you are really very clear about your ideas, very good thoughts. और इन्होंने भी जब बताया सबने तो बहुत ही अच्छा लगा। तो ऐसे डिस्कशन होते रहे, मिलते रहे और काम करें, बस हम काम करते हैं।
आप लोगों के साथ रह के मानिए ना थोड़ा सा सीखने को मिल जाता है, एंड दैट्स व्हाट इट कम्स अक्रॉस। आपका हाथ जोड़ के बहुत 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 धन्यवाद फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड मैं हमेशा सब अपनी टीम को भी बोलती हूँ, हंसा माँ से बात करके जो उनके चेहरे का नूर है ना, वो हमारे ऊपर आता है। So I would say that if I am glowing, it's your reflection, Ma. So that is where it comes from. Thank you so much, Ma. Thank you to all our viewers from Beauty and Wellness Sector Skill Council as well as NSDC for joining us today. And let's celebrate International Day of Yoga on 21st June 2020. But make it a habit every day. जैसे हंसा माँ ने बताया, गुरु जी ने बताया, and हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया, योगा को हम अगर अपना डे टू डे लाइफ का हिस्सा बना लेंगे तो ये अंदर से ही वो कहते हैं ना एक डिफरेंट एनर्जी हमारी बॉडी में आना शुरू हो जाएगी. विल बी एबल टू फेस कोरोना इज अ वेरी स्मॉल थिंग इन फ्रंट ऑफ दैट. सो आप सबको थैंक यू एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. नमस्कार. थैंक यू.